today on the Constitution. Because, sir, in my last few speeches, I spoke about the concept of Abhay Mudra, the concept of fearlessness, truth, and non-violence. And I showed the House images of our different religions displaying this Abhay Mudra. People call the Constitution the longest written constitution in the world, but the Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the Supreme Leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है. ये आपके नेता ने कहा, जिसकी आप पूजा करते हैं. आज की हमारी कक्षा का विषय है भारतीय संविधान. मैं इसे अपनी कक्षा में कहूँगा कि बाबा साहब का संविधान, मनु का संविधान यानी मनु स्मृति, और अल्लाह का संविधान शरिया. इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा जवान के हिसाब से, थोड़ा जवान पर अच्छे से आए, मोहम्मद साहब का संविधान. ठीक है. तो बाबा साहब का संविधान, महर्षि मनु का संविधान और मोहम्मद साहब के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करने वाली 4 कक्षाओं में से पहली कक्षा आज की है. और इसमें हम इन तीनों संविधानों का एक सामान्य परिचय करेंगे आज की कक्षा में. ठीक है. सामान्य परिचय. किसका सामान्य परिचय? इन तीनों का सामान्य परिचय आज की हमारी कक्षा में होगा. ठीक है. फिर आगे आने वाली 3 कक्षा में इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होगा, पहला. फिर इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन होगा, दूसरी कक्षा. फिर इसका और इसका अध्ययन होगा, ये तीसरी कक्षा. इस तरह से हमारी 4 कक्षाएं होंगी. और आज की कक्षा में है इनका सामान्य परिचय, मोटा मोटा. ठीक है ना. तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आखिर इस विषय को चुनने का कारण क्या है. ठीक है नहीं. अभी विंटर सेशन निकल के गया है भारतीय उसका लोकसभा और राज्यसभा का. वहाँ पर बाबा साहब के संविधान पर घंटों घंटों चर्चा हुई. उसमें बहुत सारे लीडरान ने पार्टिसिपेट किया और उनमें सबसे लैंडमार्क स्पीच किसी का यदि रहा
तो वो था माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, सुनने लायक था और शोध के लायक था। और पिछले लगभग 20, 25, 30 सालों में इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, तार्किक और आप कह सकते हो कि जो भी आपको चाहिए अध्ययन के लिए भारतीय संविधान के विषय में, वो वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन उन्होंने 6 बार बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब कहा और फिर कहा उन्होंने कि यदि आप लोग इतना बाबा साहब का नाम लेते हो, अम्बेडकर 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 ऐसे कहा था, यदि इतना नाम आप भगवान के लिए लेते तो आपको भगवान मिल जाता, ऐसे करके कहा। तो फिर वो कंट्रोवर्सी पूरी उस पर आकर टिक गई। बहरहाल इसी विंटर सेशन में LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी जी ने भी अपना वक्तव्य रखा, भाषण रखा। सामान्य दृष्टि से 25-30 मिनट या का उनका जो भाषण था, सामान्य दृष्टि से देखोगे तो सभी कहेंगे कि भाई इनके भाषण एक मतलब बहुत सामान्य सा भाषण लगेगा। लेकिन उसके पहले 5 से 6 मिनट, भाषण के 5 से 6 मिनट बार बार सुनने लायक है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भारतीय संविधान है इसका मूल स्रोत, वो पिछले वाले जो सत्र गया था, मानसून सेशन ही था ना इससे पहले, उसमें उन्होंने अभय मुद्रा के बारे में बातचीत की थी। तो उसी को कंटिन्यू कर रहे थे कि पिछली बार मैंने अभय मुद्रा के बारे में बात कही थी, हाथ दिखाकर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने शुरू किया कि भारतीय संविधान जो है वो महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और कबीर और गुरु नानक, इनके विचारों से भरा है। या ये कहिए कि उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय संविधान का स्रोत है वो इन विद्वानों या इन महर्षियों या इनको रिप्रेजेंट करता है, इनके विचारों को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जो भारतीय संविधान है, यानी जो बाबा साहब का संविधान है, वो विशुद्ध रूप से भारतीय है। इसके बाद उन्होंने आगे बात बढ़ाई और उसमें वीर सावरकर को कोट किया। और वीर सावरकर को कोट करते समय उन्होंने वीर सावरकर को RSS से जोड़ा, RSS को BJP से जोड़ा और फिर उन्होंने कहा, और उन्होंने वीर सावरकर को कोट करते हुए कहा कि वीर सावरकर ने कहा था इस भारतीय संविधान के विषय में क्या, वर्स्ट थिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट इट, कि इस भारतीय संविधान के बारे में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। फिर वो और आगे बढ़ते चले गए और बाद में उन्होंने उसी में कोट करते हुए कहा, दिस बुक, कौन सी, मनुस्मृति के बारे में कहते हैं कि दिस बुक फॉर सेंचुरीज हैज कोडिफाइड स्पिरिचुअल एंड डिवाइन मार्च अवर नेशन, टुडे मनुस्मृति इज लॉ। तो यहां उन्होंने ये बात कही कि ये जो लोग हैं ये उस विचारधारा को मानते हैं जो विचारधारा मनुस्मृति को इस भारत का संविधान मानती है, और हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और बाबा साहब का संविधान ही असली भारतीयता को दर्शाता है। यहां से कई बातें निकल के आई। पहली बात तो ये निकल के आई कि जो कुछ मनुस्मृति में लिखा हुआ है वो भारतीय नहीं है, जो कुछ बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है वो भारतीय है, और जो बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं वही विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। पहली बात तो एक निकल के आई। दूसरी बात उनकी बात से ये निकल के आई कि जब वो कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसका सोर्स महावीर स्वामी में है, गौतम बुद्ध में है, कबीर में है,
और गुरु नानक में है। इनमें सोर्स है, यानी कि वहीं से ये संविधान लिया गया है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आई कि जो भारतीय संविधान का सोर्स है वो व्यक्ति है। ठीक है। एक और बात यहाँ से निकल के आई कि उन्होंने राम के विषय में नहीं कहा और ना ही कृष्ण का नाम लिया, ना ही कबीर के गुरु रामानंद का नाम लिया, जिन्होंने कहा था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। रामानंद, उनका भी नाम नहीं लिया। समझ में? ना ही तुलसीदास का नाम लिया। ठीक है। एक और बात यहां से निकल के आई, वो ये निकल के आई कि जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है वो गैर भारतीय है और उसको मानने वाले गैर भारतीय सोच के लोग हैं। लेकिन यहां से जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है वो एक निर्णय पर पहुंचेंगे, जिन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, जिन्होंने गौतम बुद्ध का अध्ययन किया है, जिन्होंने महावीर स्वामी का अध्ययन किया है, कबीर का अध्ययन किया है, गुरु नानक का अध्ययन किया है, कि इनमें से किसी भी महानुभाव ने धर्म के विरोध में या धर्म निरपेक्षता के बारे में एक वाक्य नहीं कहा। इनका अध्ययन करिए, ये सारे के सारे लोग धर्म से प्रेरित लोग अपने आप को बताते हैं और धर्म के सापेक्ष बात करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान को देखा जाए तो उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द लिखा हुआ है। तो राहुल गांधी जी की ये बात कि इन लोगों से ये भारतीय संविधान लिया गया है, तो ये बात यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ठीक है। हालांकि वहां पंथ निरपेक्ष लिखा है, लेकिन पंथ तो फिर खुल के कहना चाहिए कि भाई पंथ अलग है, धर्म अलग है। एक बात यह भी आ सकती है कि चूंकि ये लोग सारे धर्म के पक्ष में बात करते आए हैं, इसलिए भारतीय संविधान धार्मिक संविधान है। एक बात यहां से निकलती है। ठीक है नहीं? एक बात और निकल के आती है, वो ये कि इनमें से किसी भी महाविभूति ने अधिकारों पर चर्चा कभी नहीं की। इन्होंने हमेशा बात की है तो कर्तव्यों पे बात की है। आप इनका पूरा अध्ययन करो तो अधिकार इनके जीवन में, अधिकार नाम की चीज इन्होंने जीवन में कभी प्रयोग की ही नहीं। या ये कहिए कि इन लोगों ने अधिकारों से ऊपर कर्तव्यों को महत्व दिया है। लेकिन भारतीय संविधान का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारतीय संविधान अधिकार केंद्रित है, यानी कि फंडामेंटल राइट सेंट्रिक है, फंडामेंटल ड्यूटी सेंट्रिक नहीं है। अब वो तो खुली हुई बात है, एक बात समझ में आई। तो ये बात यहां भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि भाई ये लोग कर्तव्यों की बात करते 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 इतना सारा कुछ लिख के और दे के चले गए समाज में, उन्होंने कभी अधिकारों के बारे में बात नहीं की। लेकिन ये संविधान अधिकारों के बारे में बात करता है, कर्तव्यों के बारे में भी लिखता है, लेकिन कर्तव्यों के हनन पर या कर्तव्य उस पर मतलब ड्यूटी सेंट्रिक नहीं है, फंडामेंटल राइट सेंट्रिक है। तो एक बात यहां भी कंट्राडिक्ट करती है। ये सभी विद्वान, महावीर स्वामी हों और ये जैन हों, महावीर स्वामी हों, गौतम बुद्ध हों या कबीर, ये सभी मानव में कौन सा मानव नीच होगा या कौन सा मानव श्रेष्ठ होगा, इसका इन सब ने एक ही क्राइटेरिया दिया है, वो है दैवीय संपदा और आसुरी संपदा। कि जो भी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से युक्त होगा, इसको आसुरी संपदा कहा गया है गीता के अध्याय 16 में। उसको नीच कहा है, गीता में भी कहा है, इन सब ने कहा है।
और धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, ऐसे गुणों को, तप, दान, सत्य, ऐसे गुणों को इन सब ने श्रेष्ठ बताया है और इन सारे गुणों से युक्त व्यक्तियों की इन्होंने प्रशंसा की है और इनको समर्थन किया है। ठीक है, तो इन्होंने कभी भी जन्म के आधार पर मानव में, भाषा के आधार पर मानव में, संख्या के आधार पर मानव में भेद नहीं किया है। पैसे के आधार पर मानव में भेद नहीं किया है। शक्ति के आधार पर मानव में भेद इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने भेद किस आधार पर किया है? दैवीय संपदा और आसुरी संपदा, कि जिन लोगों में आसुरी संपदा है वो नीच है, इन्होंने उनकी निंदा की है। और आसुरी संपदा से कैसे लोगों को बाहर लाकर दैवीय संपदा युक्त बनाया जाए, उसके लिए निरंतर जीवन भर प्रयास किया। आप अध्ययन कर लो। लेकिन भारतीय संविधान संख्या के आधार पर निर्णय करता है। भारतीय संविधान जन्म के आधार पर व्यक्ति में भेद करता है। जातियों का जो कॉन्सेप्ट है या रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जन्म के आधार पर है। भारतीय संविधान ने कहा है कि अमुक अमुक जातियों में पैदा होने वाला व्यक्ति एससी का होगा और उसको रिजर्वेशन मिलेगा, और अमुक अमुक जातियों में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण होगा, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो किस आधार पर निर्णय हो रहा है सवर्ण कौन है और दलित कौन है? जन्म के आधार पर हो रहा है। लेकिन इन सब ने कभी भी जन्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया है। उनका भेद था आसुरी संपदा और दैवीय संपदा। जो लोग कामी हैं, क्रोधी हैं या जो हिंसा करते हैं, ये सारे लोगों को इन्होंने कहा है ये भाई नीचे, इन्हें कोई भी रिजर्वेशन समाज में नहीं मिलेगा, इवन सम्मान भी नहीं मिलेगा। ठीक है नहीं? तो आज के ये विषय चुनने के पीछे का पहला कारण ये था। हमारे माननीय राहुल जी का लोकसभा में दिया गया भाषण। ठीक है, इसका पहला कारण ये था। तो यहां से दो बातें निकल के आती हैं कि भाई मनुस्मृति और बाबा साहब के संविधान की तुलनात्मक अध्ययन हो जाना चाहिए, तो लोगों को निर्णय करने का मौका मिल जाएगा कि भाई कौन सा संविधान ऐसा है, मनु का संविधान या बाबा साहब का संविधान, जो कि भारतीय है, विशुद्ध भारतीय है। एक तो ये निर्णय करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, अब आप कहोगे भाई साहब ये तो दो के बारे में बात हो गई, बाबा साहब के संविधान और मनु के विषय में हो गया। इस तीसरा संविधान आप कहां से, शरिया को कैसे बीच में ले आए? है ना? तो दो कोट सुनो। कोई भी मुस्लिम जो किसी भी कार्य या विश्वास का समर्थन अथवा अनुमोदन कुरान के सर्वांगीण सिद्धांत के प्रतिकूल किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी अथवा दर्शन प्रणाली में खोजता है, मुस्लिम नहीं रहता। समझ में? आगे और उसे राजनीतिक काफिर माना जाएगा। कोई भी विचार जिसका स्रोत कुरान के बाहर है वो नितांत कुफ्र है। कहां से है ये? गांधी पैन इस्लामिज्म, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म किसने लिखी है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। भारतीय जो कांग्रेस की पहली सरकार बनी, उसमें जो पहला शिक्षा मंत्री बना मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, स्वर्गीय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। और वो कहते हैं कि यदि कोई भी विचारधारा का स्रोत कुरान के अलावा कोई दूसरा है तो वो कुफ्र है, और जो इसको मानेगा मुस्लिम, वो मुस्लिम नहीं रहेगा, वो राजनीतिक काफिर होगा। आई समझ में कि नहीं? अब आप ऐसे समझो इसको कि राहुल जी कह रहे हैं कि जो भारतीय संविधान है इसका जो स्रोत है वो गौतम बुद्ध में निहित है, इसका जो मूल है वो महावीर स्वामी में निहित है, कबीर में निहित है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इसका जो और मूल रूप से भारतीय है ये संविधान।
उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में एक सेंटेंस भी ये नहीं कहा कि इस संविधान का स्रोत कुरान भी है। और उनके प्रथम शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो भी कुरान के अलावा स्रोत होगा, ऐसे दर्शन का, ऐसी विचारधारा का जो भी मुस्लिम अनुमोदन करेगा या उसके पक्ष में होगा, वो राजनीतिक काफिर होगा। और ऐसी विचारधारा जो कि कुरान के अतिरिक्त कहीं और से स्रोत लेती है, वो विचारधारा कुफ्र होगी। दूसरी बात, भारत जैसे देश को जो एक बार मुसलमानों के शासन में रह चुका है, कभी भी त्यागा नहीं जा सकता। और प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि उस पर, यानी भारत पर, खोई हुई मुस्लिम सत्ता को फिर प्राप्त करने के लिए जिहाद करे। कौन कह रहा है? प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, कि भारत एक बार दारुल इस्लाम रह चुका है, इस्लाम का इस पर शासन रह चुका है, तो इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर दोबारा से इस्लाम का शासन होना चाहिए, उसके लिए जिहाद करना है। यही कर्तव्य है हर मुसलमान का। तो अब इन सारे तीनों चारों बातों को एक साथ लगा के देखो। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत, इसका बाबा साहब के संविधान का स्रोत जो है वो गुरु नानक जी और उनमें है, इसलिए ये विशुद्ध भारतीय है। इनके पहले शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुरान के अलावा कोई भी स्रोत है किसी भी विचारधारा का, किसी भी दर्शन का, वो कुफ्र है। तो ये कुफ्र है, भारतीय संविधान कुफ्र है। चूंकि वो कुफ्र है और कुफ्र को जो मानता है वो कहलाता है काफिर। ठीक है, तो राहुल गांधी जी वैसे तो काफिर हैं ही, वो तो कोई शक ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी उसका अनुमोदन कर रहे हैं, वो काफिर है। फिर वो ये कह रहे हैं कि इस पर भारत, उसका शासन होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के अंडर में रहा है, शरिया का शासन दोबारा से इस पर होना चाहिए, यानी कुफ्र का शासन हटा करके और इस पर शरिया का शासन होना चाहिए। तो यहां से तीन विचारधाराओं को हम देखें एक साथ कि भारत में राहुल जी कह रहे हैं कि मनु को मानने वाले वो लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वीर सावरकर की विचारधारा से प्रेरित है। और वीर सावरकर कहते हैं कि जो मनुस्मृति है वही इस लैंड ऑफ द लॉ होना चाहिए। और वो जो विचार है मनुस्मृति, वो गैर भारतीय है। ठीक है, तो यहां से मनुस्मृति मैदान में आ गई और भारतीय संविधान मैदान में आ गया। लेकिन इनके प्रथम शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कुरान के अलावा कोई भी विचारधारा स्वीकार्य नहीं है हम मुसलमानों को। यदि हम स्वीकार करेंगे तो हम राजनीतिक रूप से काफिर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो भी कुरान के अतिरिक्त विचारधारा है वो कुफ्र है। तो यहां से शरिया मैदान में आ गई। ऐसा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने क्यों कहा? इसलिए ये तीनों विचारधाराएं हमारे अध्ययन का वो बनेंगी, कक्षाओं में हमारे अध्ययन का विषय बनेंगी। तो इन तीनों विचारधाराओं का जब सामान्य अध्ययन होगा तो लोग निर्णय कर पाएंगे कि कौन सी विचारधारा ऐसी है जो लैंड ऑफ द लॉ होनी चाहिए, या कौन सी ऐसी विचारधारा है जो इस लैंड ऑफ द लॉ तो क्या इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। इसका भी निर्णय लिया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि मनु ने जो कुछ कहा है वो इतना ज्यादा घातक है मनुष्य जाति के लिए कि वो तो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, यदि ऐसा लगता है अध्ययन के बाद तो भी निर्णय करने का अधिकार है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं, जो शरिया है वो इतना घातक है कि भारतीय जो संस्कृति है या भारतवर्ष के अंदर
या भारत के अंदर शरिया का छोटा सा किंचित मात्र भी कण नहीं होना चाहिए, ऐसा भी निर्णय करने का मौका मिलेगा। तो ये निर्णय करने का मौका कब मिलेगा? वो तब मिलेगा जब इन तीनों का सामान्य अध्ययन हमारे पास होना हो। तो इससे क्या होगा कि जनमानस जो इंटेलेक्चुअल वर्ग में बहस का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है उसके साथ अपने आप को जोड़ने का काम कर पाएगा। तो हमारी कक्षा का काम केवल इतना है कि सामान्य लोग जो मनुस्मृति से परिचित नहीं है, जो बाबा साहब संविधान से तो हैं ज़्यादातर लोग, जो शरिया से परिचित नहीं है, वो इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करें और अपने आप को इस विचारधारा, इस बहस में पार्टिसिपेट करें। और जब बहस में पार्टिसिपेट करेंगे तो जब खंडन मंडन की प्रक्रिया होती है उससे कोई नई चीज़ निकल के आएगी, किसी नई चीज़, किसी पुरानी चीज़ को हटाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये क्लास रखी गई है।